Hello friend, welcome to Simply Tech. This is Pilini channel. We are not recommending any stock to buy or sell. I am extremely sorry for the not uploading any video last 20 days. I am extremely sorry. First stock recorded for stock speed. Srigi Stands Logistics Limited. Share price 436, 50 week high, 509, 50 week low, 182, phase rupee stand, market cap micro cap. So risk is there. Reserve around 25 crores, debt around 42 crores. Debt is higher than the reserve. So it is a debtful stock. Stock split 1:5. Face value changes from 10 rupees to 2 rupees. One share split into 5 share. Record date 15 February. Like date also 15 February because T+1 कैटेगरी. अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर 5 शेयर में स्प्लिट होएगा. फेस वैल्यू 10 रुपये से 2 रुपये चेंज हो रहा है. माइक्रो कैप है, सो रिस्क है, तो वो भी ध्यान में रख लिए. और इसका रिकॉर्ड डेट है 15 फरवरी. 15 फरवरी से पहले स्टॉक को होल्ड करने से आपको 1:5 से स्प्लिट होएगा. सेकेंड स्टॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव डिविडेंड. Banaras Beats Limited. Current share price 84. 52 book value 80 rupees. 52 week high 116. 52 week low 60 rupees. Face value rupees 10. Market cap micro cap. So risk is there. Debt around 46 crore. Reserve around 46 crore. Debt around 6 crore. Interim dividend 2 rupees. Dividend yield comes around 2.38%. Record date 13 January. Exit date also 13 January because T+1 category. स्टॉक ने 2 रुपये डिविडेंड दे रहा है. डिविडेंड लाएगा आपको 2.38% डिविडेंड. बढ़िया डिविडेंड है. और रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी है. उससे पहले आप स्टॉक को होल्ड करने से आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिलेगा. तो शानदार कंपनी लग रहा है और डेप्ट भी बहुत कम है. सो ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है. सो यदि आपको स्टॉक को 30 जनवरी से पहले होल्ड करने से आपको 2 रुपये डिविडेंड मिलेगा. थर्ड स्टॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव डिविडेंड. Godhi Plascon India Limited. Current price 27. Book value 13 rupees. 50 week high 31 rupees. 50 week low 17 rupees. Face value rupees 10. Market cap micro cap 28 crores micro cap. So very risky is there. Reserve around 3.51 crores. Debt around 34 lakhs. So almost debt free stock. Interim dividend 2 rupees. Dividend yield comes around 7.40%. So that is a very good dividend yield. Record date 24 January. Ex date 24 January. Because this is also T+1 category. But you cannot buy the stock because if you the only problem is the stock is available in lot size. Minimum lot size is 100 quantity. So 100 quantity if you buy, then only you can buy. Otherwise another problem is in Zerodha you cannot buy the. If your brokerage is Zerodha, then you cannot buy the stock because Zerodha directly linked to CDSL depository. So CDSL will not allow the stock to buy. So you cannot buy the stock from Zerodha. I don't know about the other brokerage company. So but Zerodha it is not possible to buy because it is linked to CDSL. CDSL will not allow to not allow the stock to credit into your demat account. So mostly NSDL will allow the stock. So if you have NSDL account, then you can easily buy the stock. Otherwise it is not possible as per my consideration. गोदी प्लस वन एकदम बढ़िया डिविडेंड है. 2 रुपये डिविडेंड दे रहा है. डिविडेंड ला लो 7.40%, यानी कि 7.5% की डिविडेंड दे रही है. एकदम बढ़िया डिविडेंड है और रिकॉर्ड डेट है 24 जनवरी. उससे पहले आप स्टॉक को होल्ड करने से आपको ये डिविडेंड बढ़िया मिलेगा. लेकिन एक ही बात है, स्टॉक मिनिमम लॉट साइज में अवेलेबल है. 100 क्वांटिटी लेना पड़ेगा. अगर 100 क्वांटिटी आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपके अकाउंट जीरोधा से है तो आप ये स्टॉक को बाई करना नामुमकिन है. बिकॉज जीरोधा में ये स्टॉक को बाई करने के लिए नॉट अलाउड है. बिकॉज जीरोधा का डिपॉजिटरी है, सीधा CDSL है. सो CDSL ये स्टॉक को लेने से मना करता है. बिकॉज CDSL के अकाउंट में ये स्टॉक नहीं आएगा. तो अगर NSDL का होने से आप शायद आपको आ सकता है. लेकिन जीरोधा से अकाउंट से आपको इस आपके अकाउंट में नहीं स्टॉक को बाई कर नहीं सकते. यदि आपके पास NSDL का दूसरा कोई ब्रोकरेज का हुआ तो उसमें बाई कर सकते हैं. तो यही स्टॉक में प्रॉब्लम है. तो यदि आपके पास आपको ये स्टॉक लेना चाहिए तो आप जीरोधा से नहीं ले सकते. चाहिए तो आप ट्राई करके देखिए, लेकिन वो नॉट अलाउ करेगा. यही इस स्टॉक में एक कमी है कि हम जीरोधा से नहीं ले सकते. लेकिन एकदम बढ़िया स्टॉक है. फोर्थ स्टॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव डिविडेंड. एंजल वन लिमिटेड. करंट प्राइस है 1315. Book value 226. 50 week high 2022. 50 week low 1865. Face value rupees 10. Market cap small cap. Reserve around 1804 crores. Debt around 3032 crores. So debt ज़्यादा है. इस पर debt is high in this stock. Interim dividend 9 rupees 60 paise. Dividend yield comes around 0.73%. Record date 24 January. Exit date also 24 January because this is also T+1 category. एंजल वन एकदम बढ़िया कंपनी है और ये 9 रुपये 60 पैसे का बढ़िया डिविडेंड दे रहा है. और डिविडेंड यील्ड कम सारा है, आपको मिलेगा 0.73%, यानी कि 1% से भी कम डिविडेंड यील्ड है.
यदि आपके पास है स्टॉक का तो आपको एक अच्छा न्यूज़ है कि आपको 9 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड आराम से मिल जाएगा, और रिकॉर्ड डेट है 24 जनवरी। इससे पहले स्टॉक को होल्ड करने से आपको ये डिविडेंड मिलेगा। फिफ्थ स्टॉक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड स्प्लिट एंड बोनस। विनी ओवरसीज लिमिटेड, current price is 188, book value 226. Sorry, book value something I made mistake. It is not a 22 or 226. It's a very risky stock, fundamentally totally weak stock. 50 week high 188, 50 week low 81. Face value rupees 10, market cap micro cap, very very risky stock, fundamentally totally damaged company. Reserve around 16 crores, debt around 14 crores. Stock split 1:10 plus bonus 13:10. If you have face value changes from 10 rupees to 1 rupees, 1 share split into 10 share. After that, they are giving bonus 13:10. 13 bonus share for every 10 share held. If you have 10 share, you get 13 bonus share. So to overall, if you have 1 share become 23 shares. Recorded ATP declare. ये विनी ओवरसीज एकदम फंडामेंटली वीक कंपनी है। अगर यदि आप मैंने इसका बेनिफिट चाहते हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन 50 वीक हाई में ट्रेड हो रहा है। इसका बुक वैल्यू में गलत मेंशन किया, बुक वैल्यू इतना नहीं है, बुक वैल्यू बहुत कम है, और फंडामेंटली वीक वाला स्टॉक है, और मार्केट कैप भी माइक्रो कैप में आता है। और ये स्प्लिट दे रहा है कि 1:10, फेस वैल्यू 10 रुपये से 1 रुपये को चेंज हो रहा है, तो एक शेयर 10 शेयर में स्प्लिट होएगा। उसके बाद आपको बोनस मिल रहा है कि 13:10, यानी कि अब 10 शेयर रखेंगे तो आपको 13 शेयर मिलेगा। तो अभी अगर 1 शेयर है तो 1 शेयर 10 शेयर में स्प्लिट होएगा, वो 10 शेयर के लिए 13 शेयर बोनस मिलेगा। लगभग 1 शेयर होएगा 23 शेयर हो जाएगा। अगर आपके पास 1 शेयर है, स्प्लिट और बोनस के बाद आपका एक शेयर 23 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएगा। रिकॉर्डेड अभी अनाउंस नहीं किया, तो जल्दी इसका अनाउंसमेंट आ सकता है, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अपकमिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में कंसिडर डिविडेंड नॉट बाई बैक, ओनली डिविडेंड, यानी कि आने वाली बोर्ड मीटिंग में आप डिविडेंड के बारे में विचार कर सकते हैं। उसके लिए कोई गारंटी नहीं है, वो पक्का देंगे करके। ज़्यादातर वो दे देते हैं, लेकिन कभी कभी वो ना भी दे सकते, वो मना भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गारंटी। इट्स अप टू द बोर्ड मीटिंग एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Kirloskar Pneumatics Co. Limited, current price 536, 50 week high 654, 50 week low 376, face value ₹2, market cap small cap. Board meeting scheduled to be held on 25 January. May consider interim dividend, also declaring financial result. 25 जनवरी को इनका बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में इसके बारे में, डिविडेंड के बारे में विचार करेंगे, और फाइनेंशियल रिजल्ट को भी अनाउंस करेंगे। ज़्यादातर अनाउंस तो कर देंगे, फिर भी एक डाउट रहता है, कभी भी वो मना भी कर सकते हैं। किर्लोस्कर पेनामेटिक्स को लिमिटेड, तो आपको वॉच करना पड़ेगा 25 जनवरी को क्या डिविडेंड दे रहे हैं करके। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यानी कि पावर ग्रिड इन्विट, ये आके स्टॉक नहीं है, एक आके यूनिट में आएगा, लेकिन ट्रेड हो रहा है। आप ट्रेड में बाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक में गिनती नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ स्टॉक, इट इज़ ए इन्विट। So REIT and InvIT, they don't have any face value. So share price is the company price is 128, 50 week high 160, 50 week low 120. Face value don't have face value because this is InvIT. InvIT and REIT don't have any face values. It is called as a unit. So market cap, small cap. Board meeting scheduled to be held on 24 January. May consider interim interest and distribution, income distribution, also declaring financial result. If they declare income distribution, recorded will be 30 January 2023. ये पावर ग्रिड आके इन्विट में आएगा। इन्विट और रिट में फेस वैल्यू नहीं रहेगा, इसके लिए फेस वैल्यू नहीं दिया हूँ। एक स्मॉल कैप कंपनी है, और बोर्ड ऑफ डाटा मीटिंग 24 जनवरी को रखा गया है। उसी में आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अनाउंस करेंगे। अगर प्रॉफिट में है तो अनाउंस करेंगे, या तो लॉस मेरे को तो नहीं करेंगे। ज़्यादातर 3 रुपये का हर साल देते हैं, तो इस ये महीने में भी 3 रुपये का आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। इसका रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी है। उससे पहले स्टॉक को होल्ड करने से आपको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको मिलेगा। ये स्टॉक नहीं है, ये यूनिट में रहता है, और इनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है और थोड़ा बहुत डिविडेंड देते हैं, दोनों मिला के आपको 3 रुपये तक मिल सकता है। ये एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा 24 जनवरी तक। Procter and Gamble Health Limited, current price 4,112, 50 week high 5,201, 50 week low 3,833, face value ₹10, market cap small cap. Board meeting scheduled to be held on 5 February. May consider interim dividend, also declaring financial result. If they declare interim dividend, recorded will be 13 February 2023. Procter and Gamble Health Limited, ये इनका बोर्ड मीटिंग रखा गया 5 फरवरी को, तो उसी दिन ये इंटरिम डिविडेंड के बारे में विचार करेंगे, और ऑल्सो फाइनेंशियल रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर रहे हैं।
यदि आप ये इंटरिम डिविडेंड देंगे तो उसका रिकॉर्ड डेट है 13 फरवरी, तो उससे पहले आपको स्टॉक होल्ड करने से आपको जो अनाउंसमेंट किया करेंगे डिविडेंड का वो डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये ज़्यादातर गारंटी नहीं है, फिर भी ज़्यादातर वो कंफर्म में डिविडेंड देते हैं। ये तो एक अनुमान ही है, फिर भी डिविडेंड मिल जाता है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही करते हैं लगभग। कभी कभी नहीं मिलता, वो मुश्किल से है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शेयर प्राइस 1035, 50 वीक हाई 1070, 50 वीक लो 785, फेज ₹1, मार्केट कैप लार्ज कैप में आए हैं। लार्ज कैप बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू बी ऑन 31 January, may consider interim dividend, also declaring financial result. If they declare interim dividend, record date will be 8 February 2023। सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ये, इनका तो स्टॉक तो मालूम है 1035 ₹1035 का शेयर है और फेज वैल्यू ₹1 का है। मार्केट कैप लार्ज कैप में है। बोर्ड मीटिंग रखा गया है कि 31 जनवरी को, उसी दिन डिविडेंड के बारे में विचार करेंगे और इससे भी फाइनेंशियल रिजल्ट का भी अनाउंस कर रहे हैं, यानी कि दिसंबर क्वार्टर का। यदि वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, उसका रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस कर लिए, वो घोषित कर लिए। रिकॉर्ड डेट आपको 8 फरवरी 2023 रहेगा। इससे पहले स्टॉक को होल्ड करने से आपको वो अनाउंस किया हुआ डिविडेंड मिलेगा। जो भी अनाउंसमेंट है वो 31 जनवरी को ही होएगा। स्टील कास्ट लिमिटेड, करंट प्राइस 465, 50 वीक हाई 560, 50 वीक लो 254, फेज वैल्यू ₹5, मार्केट कैप माइक्रो कैप। बोर्ड मीटिंग scheduled to be held on 33 January, may consider interim dividend, also declaring financial result, record date yet to be declared। स्टील कास्ट लिमिटेड, इनका बोर्ड मीटिंग रखा गया है 23 जनवरी को। उसी दिन बोर्ड में इंटरिम डिविडेंड के बारे में विचार करेंगे और फाइनेंशियल रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। रिकॉर्ड डेट अभी घोषित नहीं हुआ है, तो यानी कि उस दिन भी घोषित कर सकते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा, 23 जनवरी तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।